اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ بھٹکل میں ہائی ٹیک مچھلی مارکیٹ کا سنگ بنیاد وزیر دیش پانڈے کے ہاتھوں رکھا گیا۔ انسانیت کے لیے جینا اور اس کے لیے تگودو کرنا بہترین کام، مولانا مقصود عمران رشادی۔ انجمن آباد میں انجمن ایڈمنسٹریٹو اور پی جی بلاک کا افتتاح۔ ملک کو ایک ہو کر کشمیریوں کے زخم کو دور کرنے کی ضرورت ہے، اسدین اویسی کا بیان۔ ملک کے مخالف نعرہ لگائے جانے پر پاپولر فرنٹ کے لیڈر محمد توفیق گرفتار۔ ترکوں کا خمینی امریکہ سے اردوغان کے خلاف مصروف عمل۔ باغیوں کا ٹرائل، کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں، اردوغان کا بیان۔ ناظرین اب خبریں تفصیل سے۔ بھٹکل وزیر صنعت دیش پانڈے کے ہاتھوں آج صبح قریب 10:30 بجے ہائی ٹیک مچھلی مارکیٹ کا سنگ بنیاد شہر کے سرکاری اسپتال کے قریب واقع سنتے مارکیٹ کی حدود میں رکھا گیا ہے۔ اس موقع پر منعقدہ پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے وزیر موصوف نے کہا کہ شہر کے ترقیاتی کاموں میں ایک اور کام کا اضافہ ہونے جا رہا ہے۔ کرناٹکا حکومت اب ہر شہر میں ترقیاتی کام کرنے کا آغاز کر چکی ہے اور بھٹکل میں ہائی ٹیک مچھلی مارکیٹ کا قیام بھی اسی کی ایک کڑی ہے۔ کوسٹل ڈیولپمنٹ چیئرمین نویدت الوا نے کہا کہ اب ہر جگہ ترقیاتی کام ہو رہا، بھٹکل میں بھی کئی ایک کام ہو چکے ہیں اور کچھ ہونے جا رہے ہیں۔ تقریباً 6 ماہ قبل جب میں نے بھٹکل کا دورہ کیا تھا تو اس وقت یہاں کے ذمہ داروں کی جانب سے اس بات پر زور دیا گیا تھا کہ کسی طرح شہر میں نئے طرز پر بہترین سہولیات کے ساتھ عمدہ ایک مچھلی مارکیٹ کی عمارت ہونی چاہیے۔ میں نے خود جا کر موجودہ مارکیٹ کا جائزہ لیا اور اس کی خستہ حالی دیکھ کر میں نے حکومت سے نئی مچھلی مارکیٹ کے قیام کے لیے منظوری حاصل کی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کے پڑوسی علاقے شرالی میں بھی ایک بہترین مارکیٹ کا افتتاح ہو چکا ہے۔ ملحوظ رہے کہ اس ہائی ٹیک مچھلی مارکیٹ کی تعمیر کے لیے 1.38 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں اور جلد ہی اس کام کا بھی شروع ہونے کی امید ہے۔ اس موقع پر رکن اسمبلی منکال ویدیا، اسپائس بورڈ چیئرمین جناب مزمل قاضیہ، بلدیہ کی صدر منجمہ، ضلع پنچایت صدر جے شری موگر اور دیگر ذمہ داران موجود تھے۔ بھٹکل آج صبح قریب 11 بجے انجمن حامیہ مسلمین بھٹکل کی نو تعمیر شدہ عمارتوں کا افتتاح جامع مسجد سٹی بنگلور مولانا مقصود عمران رشادی اور وزیر صنعت آر وی دیش پانڈے کے ہاتھوں عمل میں آیا۔ جوکاکو شمس الدین صاحب کے نام سے موسوم ایڈمنسٹریٹو بلاک کا افتتاح آر وی دیش پانڈے نے کیا، جبکہ یسیم یحییٰ پی جی بلاک کا افتتاح مولانا مقصود عمران رشادی کے ہاتھوں عمل میں آیا اور دعا قاضی خلیفہ جماعت المسلمین بھٹکل مولانا خواجہ معین الدین ندوی مدنی نے کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے مولانا مقصود عمران رشادی صاحب نے کہا کہ انسانیت کے لیے جو دیتا ہے اس کے لیے تگودو کرتا ہے، وہی بہترین کام ہے۔ یہ ایسی خدمت ہے کہ اس کے سامنے دوسرے کام اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے اور انسانیت کی خدمت سے بڑھ کر کوئی اور چیز بھی نہیں ہے، اور سب سے بڑھ کر اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ تعلیم کے ساتھ ہمارے اخلاق بھی بہتر ہونے چاہیے، جس سے انسانیت کی خدمت بہتر طریقے سے ہو سکتی ہے۔ وزیر صنعت آر وی دیش پانڈے نے کہا کہ ہمیں اپنے اسلاف کے کارناموں کا یاد رکھتے ہوئے ہماری نئی نسل کو ان کے بارے میں معلومات فراہم کرنا چاہیے۔ وہ جو کام کر گئے ہیں ان کو یاد رکھنا ہم سب کی ذمہ داری۔ انہوں نے مزید کہا کہ جناب جوکاکو شمس الدین صاحب اور جناب یسیم یحییٰ صاحب نے صرف بھٹکل کی ترقی کے لیے کام نہیں کیے ہیں، بلکہ ہمارے پورے ضلع اور ہماری ریاست کے لیے کام کیے ہیں، جن کی خدمات کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ وزیر موصوف نے اس بات پر بھی عوام کی توجہ مبذول کرانے کی کوشش کی کہ اچھے طریقے سے روپے کمانے چاہیے، لیکن ان میں معاشرے کے حقوق نہیں بھولنا چاہیے۔ ہمارے کمائی میں ہم ان لوگوں کا بھی خیال رکھنے کی فکر کی جائے جن کے پاس روپے پیسے نہیں ہیں، اور تعلیم کے لیے خرچ کرنا تو بہت بڑی خدمت ہے جس سے تمام لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس عمارت کو عطیہ کرنے والے جوکاکو خاندان کی تعریف کرتے ہوئے وزیر موصوف نے کہا کہ ان کا ایک کام قابل تعریف ہے اور میں حکومت کرناٹک کی جانب سے ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس موقع پر مرحوم جوکاکو شمس الدین کی خدمات پر تصنیف کردہ جناب آفتاب قلعہ صاحب کی کتاب کا اجرا بھی مجلس اصلاح و تنظیم بھٹکل کے صدر جناب مزمل قاضیہ نے کیا۔ اس کے علاوہ رکن اسمبلی نے بھی حاضرین سے خطاب کرتے ہوئے اس عمارت کے انجمن کی جانب سے
से इफ्तिताह पर अंजुमन को दिली मुबारकबादी पेश की। इस मौके पर साबिक सदर अंजुमन जनाब यसम सैयद खलील रहमान साहब को इदारे की जानिब से तहनीत पेश की गई और उनकी खिदमत की सराहना की गई। प्रोग्राम की सदारत अंजुमन के सदर जनाब अब्दुर्रहीम जुकागो साहब ने की, जबकि इस्तकबालिया कलिमात अंजुमन के सेक्रेटरी जनाब कासिम जान अंसार ने पेश किए। इस मौके पर मरहूम जुकागो शमसुद्दीन के फर्जंद जनाब डॉक्टर तैयब जुकागो वगैरह मौजूद थे। हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट व सदर रुकुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल किया है कि हुकूमत कश्मीरियों से क्यों बात नहीं करती। उन्होंने कहा कि कश्मीर हमारे दिलो जिगर का हिस्सा है, कश्मीरी हमसे दूर नहीं है, वो भी हमारे भाई हैं, उनकी तकलीफ को महसूस करना ज़रूरी है। उन्होंने मदीना मुनव्वरा में दहशतगर्दाना हमले के वाक़े के खिलाफ तेलंगाना के ज़िला महबूबनगर में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से मुनाक़िदा एहतिजाजी जलसे से खिताब करते हुए कहा कि कश्मीर में जो कुछ हो रहा है वो बिल्कुल गलत है। कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा है, उस पर कोई मुफाहमत नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म को अपने एजेंडा ऑफ अलायंस पर बात करनी चाहिए जो इख्तिदार का एक हिस्सा है। उन्होंने कहा कि इत्तेहाद के इस एजेंडे पर अमल क्यों नहीं किया जाता। वज़ीर आज़म को एजेंडा ऑफ अलायंस पर बात करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा हम दहशतगर्दी की न कश्मीर में हिमायत करते हैं और न दुनिया में कहीं और उसकी हिमायत करते हैं। मुल्क को एक होकर इन कश्मीरियों के ज़ख्म को दूर करने की ज़रूरत है। उन्होंने हरियाणा में जाटों के रेजोल्यूशन की तहरीक का हवाला देते हुए कहा कि हरियाणा में जाट एहतिजाज के दौरान पुलिस के डिपो में जहाँ हथियार रखे थे वो हथियार लेकर फरार हो गए थे, वहाँ पर एक भी गोली नहीं चलाई गई, लेकिन कश्मीर में पैलेट की गोलियाँ क्यों चलाई जा रही, ये फ़र्क क्यों है। उन्होंने हिंदुस्तानी हुकूमत से मुतालबा किया कि हमारे मुल्क के तमाम आँखों के माहिर डॉक्टर्स को जमा करते हुए कश्मीर भिजवाया जाए और जिन कश्मीरियों की आँखों पर गोलियाँ लगी हैं उनका इलाज किया जाए। उन्होंने कहा हम नहीं चाहते कि कोई कश्मीरी अस्करियत पसंदी की तरफ जाए, हम चाहते हैं कि कश्मीरी हमारे पीछे हैं। अगर कश्मीर में पुलिस पर भी जुल्म होता है तो वो भी ख़त्म होना चाहिए। हुकूमत क्यों कश्मीरियों से बात नहीं करती। उन्होंने कहा कि कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा है। पटना में मुल्क मुखालिफ नारा और इस्लामिक स्कॉलर जाकिर नायक और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के सदर असदुद्दीन ओवैसी की हिमायत में जुलूस और मुजाहरा किए जाने के मामले में पुलिस ने आज पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के लीडर मोहम्मद तौफीक को गिरफ्तार कर लिया है। पटना की सीनियर पुलिस सुपरिटेंडेंट मनु महाराज ने यहाँ बताया कि राजधानी पटना के अशोकराज पथ पर कल मिस्टर नायक और मिस्टर ओवैसी की हिमायत में निकाले गए जुलूस के दौरान मुल्क मुखालिफ नारे लगाए गए। इस सिलसिले में कल ही फौरी कार्रवाई करते हुए पटना के पीर बहुर थाना मामला दर्ज किया गया था। मामला दर्ज किए जाने के बाद जुलूस और मुजाहरे में शामिल मुश्तबा 2 लोगों से पूछगिछ की गई थी। मिस्टर महाराज ने बताया कि पूछगिछ के साथ ही जुलूस और मुजाहरे की वीडियो फुटेज का जायजा लिया गया। उन्होंने कहा कि इसी बुनियाद पर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के लीडर मोहम्मद तौफीक को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार तौफीक जिला मधुबनी का रहने वाला है। पुलिस वीडियो फुटेज की बुनियाद पर कार्रवाई मजीद तेज करने में मसरूफ है। बिहार में पहला मौका है जब किसी रैली और मुजाहरे के दौरान मुल्क मुखालिफ नारे के साथ ही पाकिस्तान की हिमायत में नारे लगाए गए। मिस्टर नायक और मिस्टर ओवैसी की हिमायत में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की जानिब से कल रैली का इनेकाद किया गया था। रैली में शामिल लोग मिस्टर नायक और मिस्टर ओवैसी की हिमायत में बैनर और परचम लिए हुए थे। मुल्क मुखालिफ नारा लगाए जाने के मामले का इंकशाफ होने के बाद मरकजी खुफिया एजेंसी ने कल ही वीडियो फुटेज को जांच के लिए दिल्ली भेज दिया है। रियासती पुलिस के साथ ही खुसूसी ब्रांच ने भी वीडियो फुटेज का जायजा लेने में मसरूफ है। पॉपुलर फ्रंट की रैली में शामिल लोगों के सिलसिले में भी तफसीलात हासिल की जा रही है। वाज़ेह है कि मिस्टर नायक का नाम गुज़िश्ता दिनों बांग्लादेश में हुए दहशतगर्दाना हमले के बाद तनाज़ात में है। उन्होंने 2012 में 30 मार्च से 1 अप्रैल तक नेपाल से मुत्तसिल बिहार के जिला किशनगंज में अलग अलग मकामात पर जलसों में शिरकत की थी, जिनमें तकरीबन 10 लाख अफराद शामिल हुए थे। लंदन तुर्क बाशिंदा फतहुल्लाह गोलन, जिसके ख़ानदानी नाम गोलन का माना मुस्कुराने वाला है, उन्हें तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोगान ने इनकलाब के लिए इश्तिआल अंगीज़ी का मुरीद इल्ज़ाम ठहराया है। गोलन 1941 में तुर्की के शिमाल मशरक़ी सूबे अर्ज़रूम के एक गांव कोरोजोक में पैदा हुए। मगरबी मीडिया में गोलन तुर्की का ख़मीनी के खिताब से मशहूर है। उसकी वजह बैरून मुल्क रहकर एर्दोगान के निज़ाम के ख़िलाफ़ उनकी जंग जदल है, जिस तरह के ख़मीनी ने फ्रांस में रहकर शाह ईरान के निज़ाम के साथ किया। इंटरनेट पर गोलन की शख्सियत तलाश करने वालों की एक बड़ी तादाद मौजूद है और गूगल के सर्च इंजन पर तलाश किए जाने वालों की फहरिस्त में उनका नाम काफ़ी ऊपर है। तसव्वुफ़ के मुतालिक गोलन की किताबों का 30 से ज़्यादा ज़बानों में तर्जुमा हो चुका है। मुख्तलिफ इस्लामी उमूर के बारे में उनकी किताबों की मजमूई तादाद 62 है। वो एक हनफी मुबल्लिग और इस्लामी दानिश्वर हैं, जिनको अरबी, फ़ारसी और अंग्रेज़ी पर भी दरस हासिल है। वो तुर्की में शरीयत के निफाज की तरफ माइल नहीं और सियासत में मजहब की मुदाखलत के खिलाफ है। ये तर्ज फ़िक्र एर्दोगान और उनके मरहूम उस्ताद नजमुद्दीन अरबकान की सोच के बरअक्स है। अरबकान को सियासत में इस्लाम का बाप कहा जाता है, जबकि फतहुल्लाह गोलन के बारे में मशहूर है कि वो माशरत में इस्लाम के बाप हैं। वो एक तहरीक के बानी और सरबराह हैं जिसका नाम कोई नहीं।
तुर्की और बैरून में उनके लाखों हामी मौजूद हैं। इंटरनेट पर herkul.org में नामी वेबसाइट के जरिए गोलन और उनकी तहरीक के बारे में मालूमात हासिल की जा सकती है। तुर्की की जानिब से दहशतगर्द शुमार की जाने वाली इस तहरीक को गोलन तहरीक के नाम से पुकारा जाता है, कभी उसे खिदमत तहरीक भी बोला जाता है। अल अरबिया की तहकीक के मुताबिक एक मजहबी तहरीक है। इस तहरीक के देर इंतज़ाम तुर्की और बैरून में सैकड़ों स्कूल हैं। उसके साथ वस्ती एशिया की जमहूरियतों रूस, मराकश, कीनिया और युगांडा में भी ये तहरीक सरगर्म है। तहरीक के अपने जरीदे और खुसूसी टीवी चैनल भी हैं। उनके अलावा दुनिया के मुतअद्दिद ममालिक में तहरीक के अपनी तिजारती कंपनियाँ, फलाही व खैराती इदारे और खुसूसी सकाफती मराकज़ भी हैं। बरतानिया में ख़ास तौर पर और यूरोपीय यूनियन के ममालिक और बर्र-ए-आज़म अमरीका में भी आम तौर से तहरीक की सालाना कॉन्फ्रेंसों का इनेकाद होता है। तहरीक दुनिया की मशहूर जामियात के साथ ताउन कर रही है ताकि उन पर जोर दिया जा सके कि आलमी असर पजीरी के हामिल तहरीक के तौर पर उस पर तहकीक की जाए। तुर्क के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने हफ्ते के रोज़ जारी करदा अपने एक बयान में कहा है कि मुंतखब और आईनी हुकूमत का धड़न तख्ता करने और जमहूरियत पर शबखू मारने वाले बाकी अनासिर के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। मुल्क को ऐसे अनासिर से पाक करे हुए उन्हें उनके घरों और खुफिया पनागाहों से ढूंढ कर निकाला जाएगा। ताहम उन्होंने कहा कि बागियों के खिलाफ कार्रवाई आईन और कानून के दायरे के अंदर होगी। किसी शख्स को अपने तौर पर बागियों के ट्रायल और कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अल अरबिया के मुताबिक इस्तांबुल में केसकरी के मकाम पर अपने हामियों के इज्तिमा से खिताब करते हुए सदर एर्दोगान ने कहा कि किसी ग्रुप को रियासत के अंदर रियासत कायम करने या मुतवाज़ी हुकूमत चलाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तुर्की एक ही मुल्क है, उसे तकसीम करने की हर साजिश को पूरी क़ुव्वत से कुचला जाएगा। उन्होंने आवाम को यकीन दिलाया कि मुल्क मौजूदा बहरान से जल्द ही निकल आएगा। इस मौके पर सदर के हामियों ने बागियों को फांसी देने का मुतालबा किया तो सदर ने कहा कि इस तरह के उमूर का फैसला पार्लियामेंट में ज़ेर बहस आएगा। सदर एर्दोगान ने कहा कि मुंतखब हुकूमत के खिलाफ आलम बगावत बुलंद करने वाला फौज का एक छोटा सा गुरोह है। इस मौके पर सदर एर्दोगान पुरसुकून दिखाई दे रहे थे, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वो उंगलियों से अपने हामियों के सामने फतह का निशान भी बना रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारी फौज फौजी है, किसी मुतवाज़ी हुकूमती ढांचे का आलाकार नहीं। मैं मुसल्लह अफवाज का सुप्रीम कमांडर हूँ। मैं जानता हूँ कि अमेरिका में बैठे फतहुल्लाह गुलन जैसे लोग माजी में भी मुंतखब हुकूमत के खिलाफ बगावत की साजिशों को हवा देने की नाकाम कोशिश करते रहे हैं और अब भी ऐसा कर रहे हैं। उन्होंने अमेरिका से मुतालबा किया कि वो फतहुल्लाह गुलन को तुर्क हुकूमत के हवाले करें ताकि जुमा के रोज़ हुकूमत के खिलाफ की जाने वाली बगावत के हवाले से उन पर मुकदमा चलाया जा सके। याद रहे कि सदर एर्दोगान और दीगर हुकूमती अहदेदारों की जानिब से जिला वतन लीडर फतहुल्लाह गुलन पर अनकरा हुकूमत का तख्ता उलटने की साजिश का इल्ज़ाम आयद किया गया है। तब मिस्टर गोलन और उनकी जमात ने हुकूमत के खिलाफ फौजी बगावत की मजम्मत करते हुए इसमें मुलव्वस होने की सख्ती से तरदीद की है। नाज़रीन, ये थी फ़िक्र ख़बर वीडियो न्यूज़ की अहम तरीन ख़बरें। मज़ीद आलमी, ख़लीजी, मुल्की और मकामी ख़बरों के लिए स्क्रीन पर दिए जा रहे हमारे वेबसाइट्स तक आने की ज़हमत फरमाएँ। फिर मुलाकात होगी। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।